Hello students, I hope all of you are fine. Today we are going to start conjunctions. So let's start. First of all, we should know that what conjunctions are. Conjunctions are joining words which help to join noun, phrases, clauses और sentences. Conjunctions क्या होते हैं? Joining words होते हैं जो किसी भी टू नाउन्स को, phrases को, clauses को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ कंजक्शंस. कंजक्शंस जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस. फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग, सेकंड इज सबऑर्डिनेटिंग एंड थर्ड इज कोरिलेटिव. वी विल रीड अबाउट these conjunctions in brief. So let's start with the coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions are that conjunctions that connect two words or group of words of the same grammatical class. जो सेम ग्रामेटिकल क्लास के वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन सी होती हैं? लाइक फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, एटसेट्रा. Now let's see the examples. First of all, connect two nouns like Naina and Rajiv have always stood up for the right cause. Here are two nouns Naina and Rajiv और इनको हमने कैसे connect किया है? With the help of and. The second example is the baby crawled and reached the end of the room. कि जो बेबी है वो क्रॉलिंग कर रहा है और वो कहाँ पहुँच गया है? एट द एंड ऑफ द रूम. हेयर आर 2 phrases and these are connected with the help of conjunction and. The next example is they were angry with us and I could almost feel their angry eyes looking deep into us. Here are 2 clauses. First is they were angry with us and second is I could almost feel their angry eyes looking deep into us. And these clauses are connected by conjunction and. Listen students, we have a trick to learn the coordinating conjunctions. That is fanboys. Fanboys means F stand for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y yet, S so. So these are coordinating conjunctions. Now we will read some important conjunctions. First of all, let's start with and. And is used to connect similar qualities. जब हमें किसी भी 2 similar qualities को या similar things को connect करना हो तो हम and का use करते हैं. Now let's see the examples. Here are some sentences given to you. Read the sentences very carefully. The first one is I like oranges. I like apples. Here are 2 sentences. First is I like oranges and second is I like apples. So what's the common thing in these 2 sentences? My choice. कि मुझे क्या पसंद है? Apple, oranges. मुझे दोनों चीज़ें पसंद हैं. Here we can use and. I like oranges and apple because we are talking about some common thing. हम एक कॉमन चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी पसंद के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसे with the help of and कनेक्ट कर सकते हैं. सेकेंड इज she is sweet, she is charming. कि वो स्वीट है और वो चार्मिंग है. Here also what's the common? कि एक ही गर्ल की हम 2 क्वालिटीज़ बता रहे हैं. So here also we can use and. She is sweet and charming. The third one is John is going for party. Jia is going for party. Here also हमारे पास कॉमन क्या है कि वो दोनों पार्टी के लिए जा रहे हैं. दोनों सेंटेंसेस में ये कॉमन है ना, तो हम इनको एंड से कनेक्ट कर सकते हैं. John and Jia are going for the party. Now come on the next, that is but. It show contrast between 2 sentences. Contrast means कोई भी ऐसे 2 sentences जिनमें कोई similarities नहीं होती. ठीक है. Used to join sentences which are opposite in meaning. उन sentences को join करने में हम but का use करते हैं जो बिल्कुल ही
अपोजिट हों, ठीक है, मीनिंग में अपोजिट हों। तो आपको एग्जाम्पल से ये ईजिली क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। ही इज़ ओल्ड, ही इज़ एक्टिव। यहाँ पे भी हमें 2 सेंटेंसेस गिवन है। फर्स्ट इज ही इज़ ओल्ड, सेकेंड ही इज़ एक्टिव। अब जो ओल्ड पर्सन है वो मेनली एक्टिव नहीं होते ना, तो इसमें हमने 2 अपोजिट, यहाँ एक कॉन्ट्रास्ट हो गया कि बिल्कुल अपोजिट जो है उसकी क्वालिटी है कि वो ओल्ड है फिर भी वो एक्टिव है। सो हेयर वी यूज़ बट। द सेकेंड वन इज ही वॉज पुअर, ही वॉज ऑनेस्ट, कि वो गरीब है और ऑनेस्ट है। सो हेयर ऑल्सो वी यूज़ बट। थर्ड वन इज वी मेट एट द स्टेशन, ही फेल टू रिकोगनाइज मी, कि हम स्टेशन पर मिले थे, मुझे पहचान नहीं सका, वो मुझे पहचानने में वो फेल हो गया, ठीक है। तो इसमें भी हम बट यूज़ करेंगे। अब हमने इन सेंटेंसेस में बट क्यों यूज़ किया, क्योंकि 2 जो है ऑपोजिट मीनिंग, एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा था दोनों सेंटेंसेस में, इसलिए हमने यहाँ पर बट यूज़ किया कि वो मुझे स्टेशन पर तो मिला था पर उसने मुझे पहचाना नहीं। द नेक्स्ट कंजक्शन इज फॉर। फॉर इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ पीरियड ऑफ टाइम। जब हम किसी पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हो तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर स्टेटिंग द पर्पस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एक्शन। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट का या किसी एक्शन का पर्पस बताना हो तब भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। यूज टू टॉक अबाउट रीजन्स और कॉजेज। फॉर का यूज़ अब हम कोई रीज़न बताते हैं या कोई कारण बताते हैं उसके लिए भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। आई बॉट अ न्यू बैग फॉर माई अपकमिंग ट्रिप। इट मीन्स दैट मैंने एक नया बैग खरीदा किसके लिए, मेरी अपकमिंग ट्रिप के लिए। सो हेयर इज़ द रीज़न ऑफ एन एक्शन। उसने जो काम किया उसका रीज़न हमें बताया गया है। सो हेयर वी हैव यूज्ड फॉर। नेक्स्ट इज we listened eagerly for he brought news of our families, कि हम बड़े ही eagerly उसे सुन रहे थे। for he brought news of our families, कि वो हमारी families की न्यूज़ लेके आया था। इसमें भी एक आपको रीज़न गिवन है क्यों सुन रहे थे उसे ध्यान से, क्योंकि वो families की न्यूज़ लेके आया था। so that's why we have used for here. next is or. और इज़ यूज फॉर चॉइस बिटवीन द 2। जब हमें किसी 2 चीज़ों में से किसी एक को चूज़ करना हो तो हम और यूज़ करते हैं। सी द एग्जाम्पल। आई विल गो शॉपिंग और कैंपिंग, कि मैं शॉपिंग के लिए जाऊँगा या कैंपिंग के लिए जाऊँगा। डू यू लाइक कॉफ़ी और टी। आप क्या लेना पसंद करोगे, कॉफ़ी और टी। इसमें चॉइस है कि आप कॉफ़ी लेना पसंद करोगे या टी लेना पसंद करोगे। That's why we have used or here. Next is so. So is used to introduce clauses of result or decision. Means जब हम किसी sentence में कोई decision या फिर किसी reason के बारे में बात करते हैं, किसी result के बारे में बात करते हैं तो हम so use करते हैं। Let's see the examples now. He was sick, so he could not play football. See, here is a रिजल्ट, कि वो बीमार है इसलिए वो फुटबॉल नहीं खेल सकता। तो उसके बीमार होने का रिजल्ट क्या है कि वो फुटबॉल नहीं खेल सकता। दैट्स वाई वी हैव यूज्ड सो हेयर। नेक्स्ट इज माई सिस्टर इज़ वेरी स्मार्ट सो एवरीबडी लाइक्स हर, कि मेरी सिस्टर जो है वो बहुत स्मार्ट है। उसका रिजल्ट क्या है, एवरीबडी लाइक्स हर। शी हैज़ अ जॉब इंटरव्यू सो शी विल गो टू पेरिस, कि उसका जॉब इंटरव्यू है इसलिए वो पेरिस जाएगी। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जहाँ पे हमें कोई रिजल्ट या डिसीजन के बारे में बात करनी हो तो हम सो का यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट कंजक्शन वी आर गोइंग टू रीड इज येट। येट एज अ कंजक्शन मीन्स नेवरलेस। वी यूज इट टू शो कंट्रास्ट। नेवरलेस मीन्स फिर भी, कि इसमें जो येट है वो हम एज अ कंट्रास्ट यूज़ करते हैं जब 2 अपोजिट कंडीशंस को हम ज्वाइन करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स। आई रन फास्ट येट आई केम इन लास्ट, कि मैं तेज़ दौड़ा फिर भी मैं लास्ट पोजीशन पर आया।
ये कॉन्ट्रास्ट हो गया कि वो तेज दौड़ा फिर भी वो लास्ट पोजीशन पर आया. सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड येट हियर. नेक्स्ट इज जॉन स्टडीड अ लॉट येट ही डिडंट पास द टेस्ट. कि जॉन ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी फिर भी उसका टेस्ट पास नहीं हुआ. यहाँ पे भी टू अपोजिट कंडीशंस आ गई. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज माइकल प्लेज फुटबॉल वेल येट हिज फेवरेट स्पॉट इज टेनिस. कि माइकल जो है वो बहुत अच्छी फुटबॉल खेलता है फिर भी उसकी फेवरेट स्पोर्ट जो है वो टेनिस है. नाउ आई थिंक many of the students have a confusion in their mind can but also we use two opposite meaning statements and in yet also. So it is necessary to understand the difference between but and yet. So let's see the difference. But has the idea of little bit contrast yet has a very strong contrast. मीन्स जब हम कॉमनली किसी कंट्रास्ट की किसी कंपैरिजन की बात करते हैं देन वी कैन यूज़ बट जब हम किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट के बारे में बात करते हैं देयर वी यूज़ येट. बट इज़ जनरल येट इज़ यूजुअली वेरी सरप्राइजिंग. जनरली जब हम कोई कंपैरिजन करते हैं देन वी यूज़ बट जब बहुत कोई सरप्राइजिंग सिचुएशन हो देयर वी यूज़ येट. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. She has lung cancer, yet she smokes every day. So it's a very surprising situation कि उसे लंग कैंसर है फिर भी वो डेली स्मोक करती है. जब आपको ये बात पता चलेगी आप बहुत सरप्राइज होते हैं. ठीक है. दैट्स वाई वी हैव यूज्ड येट हियर. नेक्स्ट इज he had broken both his legs yet he refused to stop running the marathon. कि उसकी जो दोनों लेग्स हैं वो ब्रेक हो चुकी हैं फिर भी वो मैराथन में पार्टिसिपेट करने से या रनिंग करने से रिफ्यूज़ नहीं करता. इट्स ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग सिचुएशन दैट्स वाई वी हैव यूज्ड येट हियर. सो स्टूडेंट्स दीज वर योर coordinating conjunctions. I hope all of you have understood and if any student has any problem they may ask to me. Thank you students.